democratic structure of the country. How do you respond to the whole what has happened? Twitter unfortunately seems to be following the BJP policy of one nation, two laws, two policies, one for the government, one for the opposition. The moot question which needs answers from Twitter is why BJP leaders who tweeted similar photos or videos in the past, their accounts were not blocked. It is a sad day that BJP seems to be getting successful in transforming the free bird of Twitter into a singing canary, a parrot which will only speak and act as far as the BJP directs them. BJP earlier used social media platform to spread propaganda and hate. Now they seem to be on a mission to hijack, control social media platforms to kill the freedom of speech and expression of the opposition leaders, because BJP is adamant on mission Democracy Mukt Bharat. Let's talk about the ruckus which took place in Rajya Sabha. And RS soon is looking into the past precedents and action matter either to be handed over to the privilege committee or the formation of the new committee. How do you look at the development which has happened? The Rajya Sabha chairman, with utmost respect, seems to be more bothered about leaders throwing papers in the well rather than and other than BJP throwing complete accountability, answerability, democracy, parliamentary procedures and rule book down the drain. The disturbing and worrying part, more than the opposition leaders throwing the rule book to wake up this Kumbhkaran Sarkar, should be how BJP is completely throwing the rules and procedures accountability out of the window. The honorable chairman and any authority are free to take any action, but the opposition is neither going to get intimidated, threatened, neither is going to bow down. Our job is to protect democracy, whether we have to fight on the street or inside the parliament. The voice of opposition cannot be killed, suppressed or oppressed by any such tactics which are biased and tilted in the favor of the current regime. Let's talk about the Punjab. Do something about the farm laws. After becoming the PCC chief, Navjot Singh Sidhu has challenged Amrinder Singh on several occasions. As far as facts are concerned, the Punjab government was the first government to move a resolution in the assembly seeking the repeal of the 3 dark farm laws, and have also moved amendment bills in the interest of the farmers, which are pending approval with the president. So factually, Punjab government has done what needed to be done, and the need of the hour is rather than challenging each other, all the opposition leaders should be united to challenge the BJP government so that their mission, Kisan Mukt Bharat, does not become a reality. According to US media, the US is sending teeth to begin the evacuation, with the Taliban sweeping across the country. US officials say that Kabul could fall in 30 days. Afghanistan is being sucked into a vortex of violence and killings by the Taliban. The India definitely cannot behave like a deer caught between the headlights. We must protect the investments, bring our people back into India, and the entire world should wake up to the reality that a disturbed Pakistan and a disturbed Afghanistan and these two jodi of Pakistan and Taliban is a bad news for entire Central Asia. The more Taliban gets strong in Afghanistan, a security vacuum will be created by Pakistan-backed terror groups, which is not a good news for northern western frontiers. My appeal, rising above any politics, is BJP government must spell out its Afghan strategy so that the fumes of the fire burning in Afghanistan do not reach our borders. हिंदी के अकाउंट ब्लॉक करे हैं। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो जारी करा है। उन्होंने बोला है कि ट्विटर बायस्ड है और इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस में। ये अटैक है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर देश के। कैसे देखते हैं कि जो घटनाक्रम हुआ?
देखिए, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार ट्विटर जो भाजपा की नीति है, एक देश दो नीति दो कानून, एक विपक्ष के लिए एक सरकार के लिए, अब ट्विटर भी उसको लागू कर रहा है। आज प्रश्न, एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जब भाजपा नेताओं ने ऐसा कोई तस्वीर अगर ट्वीट की थी तो उनके अकाउंट बंद नहीं हुए, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट बंद हो गए। सत्य तो ये है, भारतीय जनता पार्टी आज ट्विटर की चिड़िया को एक अपना तोता बनाना चाहती है, जो वो बोले और वही कहे जो भाजपा सरकार चाहती है। भाजपा ने पहले सोशल मीडिया के मंच को दुष्प्रचार और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब उस सोशल मीडिया पे वो पूरा शिकंजे में लेके, कब्जे में लेके आज विपक्ष की आवाज दबानी पड़ती है। अब शायद ही देश में ऐसा ही कोई संस्था बची हो जिस पे भाजपा सरकार ने उसकी स्वायत्तता पे वार ना किया हो। पर ट्विटर जितने मर्जी अकाउंट बंद कर ले, कांग्रेस की आवाज बंद नहीं हो सकती। जन जन से और घर घर तक कांग्रेस पार्टी आवाज ट्विटर से पहले भी पहुंचाना जानती थी और बाद में भी पहुंचाना जरूर जानती है। बात करते हैं राज्यसभा में जो रकस हुआ है, मार्शल मैन हैंडल करा था इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट में। गौरतलब है कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये डिसाइड एक्शन लेंगे जो भी अनरूली बिहेवियर रहा है अपोजिशन एमपीज का, या तो कोई प्रिविलेज कमेटी बनाई जाएगी, उसको बनाई जाएगी नई कमेटी, या प्रिविलेज कमेटी को दे दिया जाएगा मैटर। कैसे देखते हैं? देखिए, आज दुर्भाग्य है कि भाजपा की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सदन को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को मन की बात का, प्रधानमंत्री की मन की बात का स्टूडियो बनाना चाहती है, जहां जन की बात बिल्कुल ना हो, जहां विपक्ष जन की बात उठा ही नहीं सके। तो विपक्ष ये पार्लियामेंट को हमेशा जन की बात उठाने वाला एक मंदिर बना रहना, देखता रहना चाहिए, पर भाजपा उसको चाहती है कि वो मन की बात का स्टूडियो बन जाए। आज दुर्भाग्य एक और भी है कि चाहे वो, बहुत इज्जत से कहता हूं, चेयरमैन राज्यसभा हो या जो भी न्याय ले रहा है, आज उनको इस बात की चिंता तो जरूर है कि आज विपक्ष ने कुछ कागज फाड़ के हाउस वेल में फेंक दिए, पर उनको इस बात की चिंता नहीं है कि भाजपा सरकार जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, किसान मुद्दे, पेगासस, इन सभी मुद्दों को आज तानाशाही के काले कुएं में फेंक रही है। निर्णय जो लेना है लीजिए, पर विपक्ष ना पीछे हटने वाला है, ना डरने वाला है। लोकतंत्र को डंडा तंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बनने देगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने चैलेंज किया है अमरिंदर सिंह को, बोला है कब इस पे ऊपर कुछ करेंगे, क्योंकि पीसीसी चीफ बनने के बाद अमरिंदर सिंह जी के ऊपर काफी अटैक करे गए हैं सिद्धू द्वारा। देखिए, उनकी निजी बयानों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर देश के सामने तथ्य जरूर होने चाहिए। पंजाब सरकार, कांग्रेस की पंजाब की सरकार पहली सरकार थी राज्य की जिन्होंने 3 काले कानून के बाद असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि काले कानून को वापस लिया जाए। बिल पास किए इन 3 काले कानूनों को रद्द करते हुए और किसान के हित में, जिसका आज तक जो है उस पर मोहर गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब ने नहीं लगाई। तो पंजाब सरकार जो किसानों की मदद, जहां तक 3 काले कानूनों की बात है, उसमें पूरी तरह कर रही है। पहले कदम उठा चुकी थी और कई बाकी राज्यों ने, राजस्थान में उनका पीछे गया। आज जो वक्त है कि एक दूसरे को चुनौती देने का वक्त नहीं, आज कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने का वक्त है कि, और उनको मजबूर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द 3 काले कानून वापस लें, क्योंकि केंद्र के कानून थे। और पूरा विपक्ष एकजुट होके इस बात पे हमारा लक्ष्य है कि भाजपा का जो सपना है किसान मुक्त भारत, वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपकी प्रश्न, यूएस मीडिया कह रही है कि ट्रूप्स वापस अफगानिस्तान भेज रहा है क्योंकि इवैक्यूएशन चालू करनी है, और तालिबान 30 दिनों, काबुल कम से कम 30 दिनों में ही शायद फॉल कर जाए। कैसे देखते हैं स्थिति को? देखिए, आज एक बहुत चिंताजनक बात है कि अफगानिस्तान का जो सुख चैन कानूनी व्यवस्था है वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही है। आज एक तालिबान के द्वारा रचा हुआ मौत का नंगा नाच, मौत का तांडव अफगानिस्तान में रचा जा रहा है। जो अफगानिस्तान में तालिबानी हिंसा की आग लगा रही है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी जिसका समर्थन करते हैं, इस आग का धुआं भी और इस आग की गर्मी भी हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंचने की पूरी संभावना है।
तो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा हित में, हिंदुस्तान के आर्थिक हित में, क्योंकि $3 बिलियन से वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हिंदुस्तान की सरकार को हर कोई वो कदम उठाना चाहिए अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अब अफगानिस्तान के लोगों के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और उम्मीद है जो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूनाइटेड नेशंस, नेटो, UNSC, जिनकी स्थापना की हुई है, जिन पे कागज पे लिखा हुआ है ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करती हैं, ये भी नींद से जागेंगे और अफगानिस्तान का, जिसे बीटिंग हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसको बीटिंग हार्ट को बंद नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।